اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ حدیث کساء کو لے کر ہے۔ اپنے گھروں میں حدیث کساء کا جتنا اہتمام آپ کریں گے، جتنی آپ اس کو پڑھوائیں گے اور جتنا حدیث کساء کو پڑھیں گے، آپ کے گھروں میں اتنی ہی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کے فضائل، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتریں گی۔ اگر آج تک آپ نے اپنے گھروں میں حدیث کساء نہیں پڑھوائی تو جلدی کریں، آج ہی اپنے گھروں میں حدیث کساء پڑھوانے کا اہتمام کریں۔ اور حدیث کساء کیا ہے؟ شیعہ اور سنی دونوں مکاتب فکر میں انتہائی معتبر سمجھی جاتی ہیں۔ حدیث کساء ایک ایسی حدیث ہے جو کہ جس کو صحیح مسلم میں بھی جس کا وجود ملتا ہے، جامع ترمذی میں بھی ملتا ہے، مسند احمد میں بھی ملتا ہے، الخصائص میں بھی ملتا ہے، ہر جگہ پہ حدیث کساء کا وجود ملتا ہے۔ حدیث کساء کیا ہے؟ حدیث کساء کے یہ سارا میں نے اردو ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہ سارا اردو ترجمہ آج ہم پڑھیں گے، اور اس اردو ترجمے کے بدولت جو ہم نے حدیث کساء کو عربی میں بھی آپ اپنے گھروں میں پڑھوا سکتے ہیں، اردو میں بھی پڑھوا سکتے ہیں۔ میرے لیے ذرا مشکل تھا کہ عربی میں اتنا زیادہ پیج لکھتی، اور تو پھر آج کل چھٹیاں ہیں، بچے بھی گھر پہ ہوتے ہیں، تو ذرا سی زیر زبر کا اگر خدا نخواستہ غلطی ہو جائے تو مسئلہ بن جاتا ہے پڑھنے والے کے لیے بھی اور جس نے بتایا اس کے لیے بھی۔ تو بہرحال جی میں نے اردو ترجمہ لکھ لیا ہے۔ حدیث کساء اردو میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو عربی نہیں پڑھ سکتے، جن کو عربی پڑھنا نہیں آتی یا کسی بھی وجہ سے، آپ یاد رکھیں حدیث کساء کو اگر گھر میں پڑھوانا ہے تو آپ اردو میں بھی پڑھوا سکتے ہیں، آپ عربی میں بھی پڑھوا سکتے ہیں۔ آپ اگر اس کا انگلش ترجمہ آپ نے کروانا ہے، انگلش ٹرانسلیشن کروانی ہے، جیسے میرے چینل پہ آڈینس الحمدللہ اٹلی، فرانس، برطانیہ، جرمنی، یورپ، کینیڈا، USA، UK ہر جگہ سے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ عربی یا اردو کو اتنا خاص نہیں جان رہے ہوتے، لیکن وہ لوگ انٹرسٹ بہت میرے چینل پہ لے رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کہتی ہوں کہ شاید وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں یا اسلام میں بہت زیادہ ان کا ماشاءاللہ انٹرسٹ ہے۔ تو اگر آپ کو عربی یا اردو اتنی زیادہ سمجھ نہ آئے کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیسے پڑھنا ہے، تو آپ اس کا انگلش ٹرانسلیشن کرا لیں۔ آپ گوگل یا کسی بھی کروم میں جا کر لکھیں حدیث کساء ان انگلش، آپ کے پاس انگلش میں حدیث کساء آ جائے گی۔ آپ وہ اپنے گھر میں پڑھوائیں اور یا آپ خود پڑھیں، اگر کوئی پڑھنے والا نہیں ہے اور تو پھر آپ خود پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں حدیث کساء کا اہتمام ضرور کروائیں۔ اور حدیث کساء شیعہ حضرات میں بھی، جو شیعہ فیملیز ہیں وہ ان میں بھی بڑی معتبر سمجھی جاتی ہیں، اور جو سنی فیملیز ہیں ان میں بھی بڑی معتبر سمجھی جاتی ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں۔ جو واقف ہیں وہ حدیث کساء کا اہتمام اپنے گھروں میں پڑھوانا کبھی بھی نہیں بھولتے ہیں، حدیث کساء کا اہتمام کروانا کبھی بھی نہیں بھولتے۔ اچھا جی، اب آگے چل کے میں حدیث کساء کو لے کر ایک وظیفہ بھی آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے لیے حدیث کساء کو پڑھنا شروع کر رہی ہوں، اور یہ دعا کرتی ہوں کہ حدیث کساء کے آخر میں ہم دعا مانگیں گے کہ وہ تمام بہنیں جن کے اور بھائی جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل ان کے اوپر کر دے، اور جیسے آدم اور اماں حوا کی جوڑی بنائی تھی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی جوڑیاں بھی بنائے، جلد از جلد بنائے، ان کے رشتے طے ہو جائیں، ان کی کامیاب شادیاں ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے ہمیشہ۔ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی روزگار کی دعا کریں گے۔ بہرحال جی پہلے ہم حدیث کساء کا شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر میں تشریف فرما تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات نبی آخر الزماں تشریف لے کر آئے ان کے گھر، اور آتے ہی کہا کہ فاطمہ یمنی چادر کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یمنی چادر دریافت کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ یمنی چادر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس یمنی چادر میں
फातिमा तुम आ जाओ। चादर को ऊपर कर कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन, तमाम के तमाम लोग चादर के नीचे आ गए। उसके बाद अल्लाह ताला से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी आखिरुल ज़मान ने ये दुआ पढ़ना शुरू की। ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, मेरे ख़ास लोग हैं, मेरे अज़ीज़ हैं। इनका गोश्त मेरा गोश्त है, इनका खून मेरा खून है। जो इन्हें तकलीफ़ दे वो मुझे तकलीफ़ देता है, जो इन्हें गम दे वो मुझे गम देता है। मैं इनके दुश्मन से दुश्मनी रखता हूँ, इनसे मोहब्बत करने वाले से मैं मोहब्बत रखता हूँ। ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूँ। बस तू अपनी रहमत, बरकतें, मग़फ़िरत और रज़ा मुझ पर और इन पर नाज़िल फरमा। इनसे हर तरह की नापाकी को दूर फरमा और इन्हें खूब पाक कर दे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ यमनी चादर के नीचे अपने तमाम अहले बैत को लेकर अल्लाह ताला से की और अल्लाह ताला ने क्या खूब उनकी दुआ कबूल की। उससे पहले भी अल्लाह ताला का ख़ास करम है, नबी की आल औलाद हैं, ये नबी के करीब के हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हदीस किस्सा में ये जो हमारे पास हदीस किस्सा है, अल्लाह ताला ने इस पे ख़ास करम फरमाया है उस शख्स के लिए जिसने ये पढ़ी अपने घर में, जिसने पढ़वाई। ठीक है जी। और अच्छा, एक सवाल ये है कि यमनी चादर ही क्यों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवरे कायनात ने मंगवाई कि फ़ातिमा मुझे यमनी चादर ला कर दो। यमनी चादर इसलिए मंगवाई क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था जब मैंने हदीस किस्सा के बारे में इल्म हासिल कर रही थी। ये सवाल मेरे जहन में आया था, तो हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के जहन में भी आए। तो ये सवाल मेरे जहन में आया था कि यमनी चादर ही आखिर क्यों मंगवाई। चादरें तो कोई सी भी मंगवा सकते हैं, तो यमनी चादर इसलिए मंगवाई थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि उस वक्त जो है यमन की चादरें बहुत नरम थीं, बहुत ज़्यादा कुशादा थी, नरम मुलायम थी। और उस वक्त यमन की चादरें बहुत मशहूर थी। यमन के लोग यमन के लोगों के लिए जो ये चादरें थी वो बहुत कम लोग ये लेते थे, क्योंकि ये चादरें ख़ास इस्लामी औरतें लेती थीं, ख़ास इस्लामी लोग लेते थे जो अपना तमाम जिस्म का हिस्सा छुपा सकते हों। और जो है बड़ी ख़ूबसूरत यमन की चादरें आज भी इस्लाम में बड़ा मकाम है यमन की चादरों का। और बहुत सी खसूसियात हैं यमन की चादरों की। बहरहाल जी, जो मुझे एक ख़ास खूबी और ख़ास वजह ये लगी है कि यमन की चादर शायद नबी आखिरुल ज़मान ने इसलिए मंगवाई क्योंकि जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि यमन की चादरें जो है नरम व मुलायम ख़ासियत रखी हामिल होती हैं। देखिए, नबी ने अपनी आल औलाद को नरम मुलायम चादर के नीचे रख जमा किया। और जब नबी की आल के साथ 10 मुहर्रम को इतना कुछ हुआ, 10 मुहर्रम को उनके सब्र को आज़माया गया। तो बहरहाल जी, अल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन के सदक़े तमाम बेरोज़गारों को रोज़गार दे। तमाम जिन लोगों की शादियां नहीं हुई उनकी शादियां अल्लाह ताला अच्छी जगह उनके नसीब बहनों के और भाइयों के खोलें। एक वक्त वो था जब कहा यह जाता था कि बेटियों के अच्छे नसीबों के अगले जिस घर में जाएं वहाँ जाके उन्हें खुशियाँ मिलें, मोहब्बतें मिलें। लेकिन आजकल आजकल बेटों के अच्छे नसीबों के लिए भी दुआएं की जाती हैं। हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। बेहयाई और जो कुफ्र है और जो शैतान का शर है बहुत ज़्यादा फैल गया है। ख़वातीन में ज़्यादा फैल रहा है जो कि मर्दों तक भी पहुंच रहा है। पूरे के पूरे घर तबाह हो रहे हैं। बहरहाल जी, बेटों के भी अच्छे नसीब की मैं अभी से अपने बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ करती हूँ। बेटों के भी अच्छे नसीब के आने वाली ऐसी हो जो हमारे घर को जोड़ के रखे, जो हमें मोहब्बत दे, जिससे हम मोहब्बत करें। आने वाली के लिए भी हम अच्छे साबित हों, वो आने वाली भी हमारे लिए अच्छी साबित हो।
बेटों के अल्लाह ताला जिन भाइयों की शादियां नहीं हुई अल्लाह ताला उनके भी अच्छे नसीब करे, उन्हें बावफा बाशुआर अच्छे बुरे वक्त में साथ देने वाली शरीक हयात अल्लाह ताला उनको अता करें। जिन बहनों के नसीब, जिन बहनों की अभी तक शादियां नहीं हुई अल्लाह ताला उनके भी नसीब अच्छे करें, उन्हें दुख सुख का साथी, अच्छा शरीक हयात, मोहब्बत इज़्ज़त वफ़ा करने वाला शरीक हयात अता करे। बेरोज़गार हैं जो अल्लाह ताला उनको रोज़गार अता करें। जो किसी बीमारी में उलझे हुए हैं, लाइलाज बीमारियों में उलझे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला नसीब करे। अल्लाह ताला तमाम लोगों की परेशानियां इमाम हसन हुसैन के सदक़े ख़त्म करे। आज हमारी परेशानियों को अल्लाह ताला आसानियों में, खुशियों में तब्दील करे। हदीस किस्सा को आप जुमेरात या जुमे की रात को पढ़वाएं अपने घर में, कम से कम 11 दिन पढ़वाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन पढ़वाएं। अच्छा, ये जो है ये बरकतों के लिए, ये जो हदीस किस्सा का मैंने आपको उर्दू तर्जमा सुनाया है ये बरकतों के लिए, घर की बरकतों के लिए। इसमें कोई ये वजीफ़ा नहीं है, आप एक बार पढ़ें, चाहे महीने में एक बार पढ़ें, चाहे साल में एक बार पढ़ें, चाहे ज़िंदगी में एक बार पढ़ लें, पढ़ें ज़रूर। अल्लाह ताला से बरकतें और फ़ज़ाइल मांगे, रहमत की तलाश करते रहा करें अल्लाह ताला की रहमतों की। लेकिन ये जो बता रही हूँ ना ये वजीफ़ा है, ये आपने जुमेरात या जुमे की रात को करना है और कम से कम 11 दिन तक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन तक करना है। इसमें पढ़नी हदीस किस्सा ही है। हदीस किस्सा अब देखें 11 दिन जब हदीस किस्सा आप पढ़ लोगे तो रोज़ तो कोई मीठी चीज़ नहीं, 11 दिन तक भी अगर हम फ़र्ज़ करें पढ़ते हैं, ठीक है, अपनी कोई किसी मुराद को पूरी करने के लिए अगर हम 11 दिन का भी वजीफ़ा करते हैं तो रोज़ तो वही नहीं है। हदीस किस्सा पढ़ के इतनी जेब इजाज़त नहीं देती कि रोज़ मिठाई रखें या फिर कोई मीठी चीज़ या खीर वगैरह पकाएं, ठीक है। तो आप ऐसा करें, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आधी प्याली चीनी ले लें, 4 चम्मच चीनी डाल लें उस प्याली में, हदीस किस्सा पढ़कर 11 दिन तक आप पढ़कर फूंक उस चीनी के ऊपर मारें और उसमें से 2 दाने अपने मुंह में डाल लें या उस शख्स के मुंह में डाल लें, या घर के लिए, घर की परेशानियों के लिए, घर की बीमारियों के लिए कर रहे हैं तो बाकी सारे घर वालों को 2-2 दाने चखा दें, चीनी कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर आप कोई मीठी चीज़ जैसे कोई भी मिठाई हो जाए, कोई खीर हो जाए, हलवा हो जाए, अगर 11 के 11 दिन पका सकते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं वो इस तरह का आपको हल बताती हूँ कि हमारी मुश्किल भी हल हो जाए और हमारी जितने हमारी जेब इजाज़त है और जितना हम में से हम सब कर सकते हो, ठीक है। तो चीनी हमारे हर घर में मौजूद होती है, चीनी के ऊपर दम कर लें और घर वालों को सबको कोई चीनी खिलाएं। और कुछ नहीं है तो चाय सब घर वालों की बनती है, या दूध सब घर वालों का, दूध में भी चाय में भी दूध ही डलता है ना, जो घर का दूध है उसमें वो चीनी डाल दें। इसमें इस तरह आपके घर के दूध में भी तो चीनी डलती है ना, चाहे उससे हम कोई भी मीठा तैयार करें तो घर के दूध में चीनी डाल लें। इस तरह आपके वो चाय पीने वालों के लोगों तक भी पहुंच जाएगी चीनी, और जो दूध पीते हैं उन लोगों तक भी पहुंच जाएगी। और इस तरीके से देखें और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी कि आपके जेब के मुताबिक, बजट के मुताबिक, और ये अमल हो जाएगा। मैक्सिमम 21 दिन का अमल है, कम से कम 11 दिन का अमल है। और इंशाल्लाह अगर तो कोई ऐसी परेशानी आ जाती है, अल्लाह ना करे ऐसी परेशानी आ गई है कि फौरी वज़ू करके दिल करा कि नहीं हदीस किस्सा अभी पढ़ाई शुरू करते हैं, अभी मैं वजीफ़ा ये शुरू करना चाहती हूँ, मेरी फ़लाँ मुश्किल खड़ी हो गई है आकर, तो आप किसी भी दिन वजीफ़ा ये वाला शुरू कर सकते हैं। अफजल ये है कि जुमेरात या जुमे की रात को करें, लेकिन परेशानी या बहालत मजबूरी आप किसी भी दिन ये वजीफ़ा कर सकते हैं, कोई कैद नहीं है दिनों की। लेकिन अच्छी और बाबरकत ये है कि जुमेरात और जुमे की रातें हैं। बाकी परेशानी की हालत में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दुआओं में अपने याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।